evening, all students and teachers. This is Anita, teacher from Shahjinagar BMC School. Today, we are going to discuss about the practice paper 3. Our subject is geography. First of all, we'll see the notice which is given in our question paper. First is all questions are compulsory, means we have to solve all the questions. Then second is draw neat diagram and sketches wherever necessary while writing answers. Means you have to draw the diagrams whenever it is necessary or compulsory in the question. The next is answers should be written in blue or black pen. Means you have to use only one pen. It can be blue or black. Means you can choose. But at a time, only one pen you can use. The next is 4. Use of pencil is allowed. Do not use any color. You can use pencils also, but you can't use any color pen. These are the notice which will be given on your SSC board question paper also. First of all, we'll look the paper pattern of geography. Means we have to know the paper pattern, and your question paper will be as per your paper pattern. First question is choose the correct option. Attempt 4 out of 4. Means in the question number 1, from these 3 types, any one can be asked. That can be choose the correct option, or identify the correlation and make a chain, and the identify correct group. 4 sub questions will be given there. And it will be for 4 marks. And marks with option will be 4. Because all sub questions will be compulsory. Now the question number 2. To attempt 4 out of 4. And these 5 types are available for the question number 2. Means any type of the sub question can be asked here. First is match the correct pair. Second is identify the odd man out. Third is arrange the sentences in the correct sequence. And the next is complete the series and identify the correct or wrong pair, incorrect or wrong pair. And it will be for 4 marks. Marks with options will be 4 only, because only 4 questions will be asked and all questions will be compulsory. Now the question number 3. Any one question type will be asked. These are the types available for question number 3. Answer in one sentence. It will be asked, means one option will be extra or more. Then name the following. It will be for 4 marks, but 5 options will be given there. And the next is say right or wrong. 5 options will be provided. And identify the type on the basis of the statements. It is also for 5 questions will be there. And the next is differentiate between. This question is for 2 marks. Means to differentiate between, you have to solve 2 questions and 3 questions will be there. And the next is write short notes. 3 questions will be there and you have to solve 2 questions. And it will be, it has 4 marks weightage, and marks with options will be 5 or 6. It's depend. If differentiate between asked or short notes asked, then the marks with options will be 6
and otherwise it will be for 5 marks. The next is question number 4A. Fill the map and make an index. Any 4 out of 6 informations to be filled, means 6 informations will be given there and any 4 you have to solve. But it is good if you solve all 6 information, you fill all 6 things in the map, and it is for 4 marks. Marks with options will be 6. The next question is question number 4B. Answer the following questions on the basis of the given map. Attempt 4 out of 6. This will be for 4 marks and marks with options will be 6 because 2 questions will be extra to solve. Now we'll see the next question. Okay, now the question number 5. It is give geographical region. Attempt any 2 out of 4. It will be for 6 marks because one question carries 3 marks and two questions will be for 6 marks. Marks with options will be 12. Now the question number 6A. Draw a graph with the help of the given statistical information and answer the questions based on the drawn graph. Here you have to draw a graph and you have to solve the questions which will be given under the table or data, and this will be for 6 marks. And then question number 6B is answer the following by reading the graph to attempt 6 out of 6. Here 6 questions will be asked for 6 marks, means all questions are compulsory. In the question number 6B, it is or question for 6A and it will be for 6 marks and marks with options will be 12. Now the question number 7. Answer in detail. Attempt 2 out of 3. This type can be asked or the next type is explain. Attempt 2 out of 3. Means 3 questions will be asked and you have to answer for the 2 questions and that will be for 8 marks. Marks with options will be 12. In total 40 marks of paper you have to attempt, means the maximum score will be 40 marks and marks with options will be 60 or 61. It is because the question number 3 differentiate between. Okay, this is your question paper. Practice paper 4 is written here, but that is the practice paper 3. Question number 1. See, all notes or notices are given here on the first page. This is the last page. Question number 5, 6 and question number 7 is there. Okay. Now we'll start the question number 1. Choose the correct option and rewrite the sentence. First question is, India's southernmost point is known as. The answer is Indira Point. Options are Lakshadweep, Indira Point, Kanyakumari and Port Blair. But correct answer is Indira Point. Now the second. India is covered mainly by ancient plateaus is the answer. And other options are given here on the screen. The next is dash is one of the features of Brazil. And options are given. Peacock means birds and animals are given here. Peacock, lion, kangaroo, pink dolphins. But the main feature or characteristics of Brazil is the pink dolphin. Means the answer is pink dolphin. And the next will be
And next question is, in India dash is the state which produces a large amount of salt. The answer is Gujarat. Here sample is given how to write the answer. Means you have to write only 4 sub questions, means question number 1 only on 1 page. Now we'll move to the next question, and this question is for 4 marks. Question number 2, complete the chain by writing the appropriate options in front of group A. ये वाला जो क्वेश्चन का जो टाइप है, ये रेयरली पूछा जाता है, मोस्टली मैच द पेयर्स ही होता है, और यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हैं, जैसे कि साइंस के पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आए, तो इसलिए ऐसे इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये जैसे ही टेबल का फॉर्मेट दिए रहता है, तो सेम वे से टेबल ड्रॉ करके उसके अंदर आंसर्स मत लिखें। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जब भी ग्रुप बी ग्रुप सी ऐसा लिखोगे तो ऐसे लगेगा कि इट इज क्वेश्चन ओनली, मीन्स यू हैव रिटन अ क्वेश्चन ओनली। तो इसीलिए क्या करना है, ग्रुप ए लिखो, उसके सामने जो परफेक्ट पेयर है उसके फ्रॉम ग्रुप बी, फ्रॉम ग्रुप सी, you have to match them and you have to write in the form of chain. See, the answer is given here. Group A, west coast of India. And from group B, the characteristic is given here. It is less wide. As we know, the west coast of India is less wide as compared to the eastern coast. तो यही वो जो ग्रुप बी से है वो मैच करता है इसको, तो हम उस ऑप्शन को आगे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ चेन। देन द नेक्स्ट इज फ्रॉम ग्रुप सी, द आंसर ऑफ फर्स्ट इज द क्रिक्स। हमें पता है कि जो है वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया की, वहां पर हमें मोस्टली क्रिक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर रिवर्स जो है उन्होंने डेल्टास फॉर्म नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें क्रिक्स के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है फ्रॉम ग्रुप ए, उसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, देन इट इज लेस वाइड, देन क्रिक्स। अगेन सेकेंड, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो हमें पता है कि इट इज मोर वाइड एज कंपेयर टू द वेस्ट कोस्ट, तो यहाँ पर हम उसका सामने आंसर लिखते हैं। देन उसके बाद फ्रॉम ग्रुप सी, मुखाशी ट्रायंगल रीजन, तो हमें पता है कि मोस्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे डेल्टास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कृष्णा कावेरी महानदी इन रिवर्स ने बनाए हुए हैं, तो ये सब डेल्टास हमें देखने को मिलते हैं। देन थर्ड इज माउंटेनस रीजन ऑफ इंडिया प्रॉस्पर्ड, तो यहाँ पर इंडिया का जो माउंटेनस रीजन है वो हम सबको पता है, दैट इज हिमालय। देन फ्रॉम ग्रुप सी, न्यू वैली माउंटेन्स, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे न्यू वैली माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिवालिक है। अगेन नेक्स्ट इज फोर्थ इज प्लेन्स इन इंडिया, उसका ग्रुप बी में से आंसर आएगा फर्टाइल सॉइल। जो भी इंडिया के जो भी प्लेन्स है, जैसे कि गंगा प्लेन है, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, तो फर्टाइल सॉइल। एंड देन फ्रॉम ग्रुप सी, एग्री बिजनेसेस मीन्स व्हाट, जो भी प्लेन एरिया है और फर्टाइल सॉइल है उसके ऊपर मोस्टली एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज चलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है इसमें चैप्टर नंबर 8 में, तो वहां पर हमने जैसे कि एग्रीकल्चरल बिजनेसेस क्या होते हैं, इवन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कौन से टाइप के होते हैं, ये सब के बारे में हमने सीखा है। तो ऐसे हमें ये सब करते आना चाहिए, मीन्स हमें ये जो सीरियली एक चैन बनाते आनी चाहिए, तो ऐसा आंसर लिखता रहेगा। और साथ में देखो मैंने आगे ग्रुप बी
और ग्रुप सी ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ग्रुप ए के सामने जो मीन्स ग्रुप ए में जो ऑप्शन है वही चारों ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हैं, देन उसके आगे क्या लिखे हैं, तो डायरेक्टली आंसर्स लिखे हैं। तो ऐसे आंसर्स हमें लिखते आने चाहिए, मीन्स आंसर्स ऐसा ही शब्द हमें यहाँ पर लिखना है। ग्रुप बी ग्रुप सी ऐसा नहीं लिखना है। ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Name the following. The question number 3 is name the following. It is for 4 marks. First question is major tributaries of the river Ganga. And then second is mountain ranges in the Himalayas. And third is rivers meeting the Bay of Bengal. Fourth is the longest river in Brazil. And the fifth is the capital of Brazil. Okay, we'll see the answers. First is answer of first question. The question was major tributaries of the river Ganga. Means you have to give the names. Name the following question was asked na. तो फर्स्ट आंसर है यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी. दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा. जब भी हम ट्रिब्यूटरीज के नेम लिखते हैं तभी हमने उनको नंबराइज करना जरूरी होता है. तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट का जो आंसर लिखा है वहां पर मैंने नंबर्स भी डाले हुए. तो जब भी नंबर भी तुम लोग दोगे तो यू विल गेट 1 मार्क इजीली. एंड उसके साथ साथ वो कैसा होना चाहिए, आंसर शुड बी इन कंप्लीट सेंटेंस. सिर्फ नंबर लिख के वो उसके ट्रिब्यूटरीज के नेम लिखेंगे तो यू विल गेट ओनली हाफ मार्क. दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इट इन कंप्लीट सेंटेंस. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज माउंटेन रेंजेस इन द हिमालय. जो भी माउंटेन के रेंजेस हैं तुम लोगों ने सीखे हैं फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ. जो भी माउंटेन के रेंजेस हैं यहाँ पर उनके नेम लिखने हैं. वी नो देयर आर 4 माउंटेन रेंजेस फ्रॉम साउथ टूवर्ड द नॉर्थ. ऑल 4 रेंजेस आर गिवन हियर. फर्स्ट इज शिवालिक. और हाँ, ये जो माउंटेन के रेंजेस लिखते हैं तो ऐसे एक नॉर्थ का लिया, देन सडनली हमने साउथ का एक रेंज लिख दिया, देन बीच के जो है लेजर हिमालय और हिमाद्री, ये सब ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं लिखना है. ये कैसे लिखना है, सीरियली लिखना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ. अगर वहां पर पर्टिकुलरली मेंशन किया है रेंजेस ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ तो उस टाइम हमें ये लिखना है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक पूछा है. क्वेश्चन में साउथ से लेके नॉर्थ तक नहीं पूछा है तो हमने उसको जैसे ही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं सेम वैसे हमने भी क्या करना है, तो वो रेंजेस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से हमें वो लिखनी है. जैसे कि देखो यहाँ पर फर्स्ट इज शिवालिक, लेजर हिमालयाज, देन थर्ड इज ग्रेटर हिमालयाज एंड फोर्थ इज ट्रांस हिमालयाज. दीज आर द माउंटेन रेंजेस इन द हिमालयाज. एंड आंसर कंप्लीट. ये 1 सेंटेंस का आंसर है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल. तो जो भी रिवर्स हैं बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं तो ऐसे रिवर्स के हमें नेम लिखने हैं. अभी यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर ये नहीं है, पर हाँ उसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे ना तो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो भी ईस्टर्न कोस्टल साइड में जो हमें रिवर्स देखने को मिलते हैं या फिर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहां पर हमें जो रिवर्स देखने को मिलते हैं एक पर्टिकुलर चेन में लिए हैं. जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में अभी गंगा रिवर को यहाँ पर स्किप कर दिया है, बट उसके बाद जो है महानदी है, देन गोदावरी है, कृष्णा है एंड कावेरी है. सबसे साउदर्न मोस्ट दैट इज द कावेरी. तो ऐसे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये लिखे हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. दीज आर द रिवर्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल. नाउ द नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्राजील. हर किसी से अगर पूछेंगे तो वो अभी इतना ब्राजील के बारे में तुम लोगों का स्टडी हो गया है तो ऐसे आंखें बंद करके भी तुम लोग बोल सकते हो. रिवर अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्राजील. क्योंकि यहाँ पर जो है ना तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर अमेजोन. तो वहां पर भी हम चैनल को अगर हम देखते हैं
कंपेयर करते हैं तो तभी भी हमें पता चलता है कि हाँ अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द ब्राजील. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील. जैसे कि इंडिया का कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली, सेम वैसे ब्राजील का ये भी पता है, द ब्राजीलिया इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील. Now we'll move to the next question. That is question number 4A. In the outline of the Brazil map, mark the places with proper index. Any 4 you have to solve. पर मैं एडवाइस दूंगी कि any 4 नहीं करना है. क्या करना है? all 6 इंफॉर्मेशन जो भी पूछी है वो सब मैप के ऊपर तुम लोगों ने उसको दिखानी है, शो करनी है. क्यों? क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि किसी एक चीज की हम प्लेस या फिर उसका जो सिंबल यूज करना है उसको हम क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं या फिर उसको इधर उधर कर देते हैं. तो उससे क्या होता है, सपोज तुम लोगों ने 4 ही ऑप्शंस को यहाँ पर मेंशन किया है, मैप के ऊपर शो किया है, और उस टाइम पे क्या हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इधर तो भी तुम लोगों का हाफ मार्क कट हो गया है. तो ये भी पॉसिबिलिटी ना हो, इसके लिए जो भी 6 चीजें पूछी जाती हैं या फिर जो भी 5 चीजें पूछी जाती हैं, तो उसको पूरे के पूरे 5 चीजों को तुम लोग यहाँ पर क्या करोगे, उस मैप के ऊपर शो करोगे. अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो फर्स्ट इज पिको डी नेबलिना. हाँ, और एक बात ध्यान में रखनी है कि मैप के ऊपर ये हैबिट ही लगा लो, मैप एंड ग्राफ इन दोनों चीजों के ऊपर कभी भी पेन का यूज मत करो. हाँ, कोई कोई बोलता है कि इंडेक्स में ओनली नेम लिखने के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो, पर ऐसा करोगे तो क्या हो जाता है, पेन यहाँ पर लाओगे ना तो गलती से भी पेन इधर उधर कर दोगे. इवन साइंस एंड सिंबल्स होते हैं, उन साइंस एंड सिंबल्स के ऊपर भी समटाइम्स क्या हो सकता है, उसको भी तुम लोग पेन से ड्रॉ कर सकते हो, शो कर सकते हो. तो ये पॉसिबिलिटी ना हो, इसके लिए मैप और ग्राफ के ऊपर बिल्कुल भी ब्लैक ब्लू पेन का यूज नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ पेंसिल, वो भी पेंसिल कैसी होनी चाहिए, डार्क पेंसिल होनी चाहिए, ताकि तुम लोगों को उसको ज्यादा स्ट्रेस देके उसको वो शो करने की जरूरत ना पड़े और वो एकदम इजीली तुम लोग उसको शो कर पाओ. तो देखो फर्स्ट इज पिको डी नेबलिना. अभी हर किसी को पता है कि जैसे कि अपने इंडिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, इवन माउंटेन के पीक्स है, माउंटेन की रेंजेस है, माउंटेन की चेन भी है, बट ब्राजील में ये इकलौता एक माउंटेन है, दैट इज पिको डी नेबलिना. और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं. और एक जो मिस्टेक होती है, जो पेपर चेकिंग के टाइम पे मैं भी देखती हूँ, तो वो ये होती है कि ये जो पिको डी नेबलिना है वो ब्राजील की ये जो बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर के ऊपर कोई कोई शो करते हैं. कितना 1 mm का डिफरेंस होता है, हार्डली. पर वो पिको डी नेबलिना फिर ब्राजील का नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर के बाहर चला जाता है ना, तो इसलिए. तो जो भी पॉलिटिकल बॉर्डर है जो यहाँ पर मैप के ऊपर मैंने शो की है, तो देखो उस बॉर्डर के अंदर उसको लिया गया है. और इसको हमेशा जो माउंटेन का पीक दिखाना है या फिर माउंटेन दिखाना है, तब उस टाइम पे उसको ट्रायंगुलर शेप ही ले लो. वही एक ये होता है, सिंबल यूज करते हैं जो भी माउंटेन दिखाना है. तो उसके लिए जब भी माउंटेन की रेंज अगर तुम लोगों को कभी शो करनी है, तो माउंटेन की रेंज तुम लोगों को पता है, एक ऐसे जो पिक की जो एक चेन है ऐसी शो करते हैं. ये मोस्टली कहाँ पर हमें शो करनी पड़ती है, जब भी इंडिया का आया मैप, तो उस टाइम पे कर सकते हैं. उसमें भी कहाँ पर, तो अगर अरावली माउंटेन रेंज ऐसा पूछा है तो दैट टाइम यू कैन यूज दिस सिंबल, अदरवाइज नो नीड. तो ये जो अभी माउंटेन का जो पिक है उसके लिए ये जो ट्रायंगुलर शेप है, वही सेम शेप तुम लोगों का साइन सिंबल का कहाँ पर आना चाहिए, तो इस इंडेक्स में भी आना चाहिए जो यहाँ पर दिखाया है. देन नेक्स्ट इज, और हाँ उसके साथ साथ जैसे कि साइन सिंबल तुम लोगों ने मैप के ऊपर शो करते हो, सेम वैसे तुम लोगों को उसका जो सीरियल नंबर है, जैसे कि यहाँ पर दिया है इंडेक्स में तुम लोगों ने लिखा है 1 नंबर, तो 1 नंबर उसी सिंबल के साइड में आना चाहिए, वहां पर उसका पेंसिल से ही नेम लिखना है. ये हो गया. अगेन उसके बाद सेकेंड है विक्टोरिया एंड मनोस. दीज आर द कैपिटल सिटीज. तो अभी ये जो कैपिटल सिटीज है
अगर मनोस देखोगे तो ये कौन सा है, अमेजोनस स्टेट, ये जो इतना बड़ा अमेजोनस स्टेट है उसकी कैपिटल सिटी है। इवन वो रिवर आइलैंड भी है, मीन्स जो अमेजोन रिवर यहाँ पर फ्लो करती है उसके अंदर ये रिवर आइलैंड भी है। अगेन मीन्स एक ट्रिब्यूटरीज है नेग्रो करके, तो वो उसको मिलती है, उस नेग्रो रिवर के अंदर ही ये आइलैंड फॉर्म हुआ है। बट ये क्या है, एक कैपिटल सिटी है किसकी, तो ये अमेजोनस स्टेट की है। तो यहाँ पर हमें स्टेट का जो कैपिटल सिटी होती है उसके लिए हम मोस्टली क्या करते हैं, डार्क सर्कल यूज करते हैं, वही सर्कल यहाँ पर मैंने दिखाया है। अगेन विटोरिया, विटोरिया इज अ कैपिटल सिटी ऑफ स्पैरिटो सैंटो। तो यहाँ पर मैप के ऊपर दिखा है, दोनों को 2 नंबर दिया है, बट मनास इज डिफरेंट विच इज इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड एंड विटोरिया इज द coastal side of South Atlantic Ocean. Then the next is state with the moderate population density, that is the Parana. It is shown here. उसके लिए एक पर्टिकुलर सिंबल यूज किया है, उसको उस सिंबल को यहाँ पर बॉक्स बना के उसके अंदर दिया है। तो ऐसे ही बॉक्स के अंदर ही कुछ देना है। जब भी हम क्या करते हैं, कुछ जोग्राफिकल फीचर दिखाते हैं, मीन्स क्या है, उसको पॉलिटिकल बॉर्डर भी हम उसको यहाँ पर नहीं शो कर सकते, दैट टाइम। द नेक्स्ट इज माराजो आइलैंड। बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, जैसे तिकोडी नेबलिना पूछते हैं, सेम वैसे माराजो आइलैंड भी उनका पॉपुलर है। तो ये जो है माराजो आइलैंड को मैंने यहाँ पर सर्कल किया है ताकि वो समझ जल्दी से वो समझ में भी आए। अगेन सेम सिंबल मैंने यहाँ पर भी इंडेक्स में भी ड्रॉ किया है। देन द नेक्स्ट इज कसिनो बीच। कसिनो बीच कहाँ है, तो सबसे साउदर्न साइड में है, साउथ अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट है वहां पर हमें दिखता है। उसके लिए क्या है, एक यहाँ पर एक शेप यूज किया हुआ है, मीन्स जो बॉर्डर है वो यहाँ पर यूज किया गया है और उसके अंदर डॉट्स दिए हैं, दैट इज द कसिनो बीच, इट इज वेरी फेमस। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4B. Observe the given map and answer the following questions. Any 4. 6 questions are asked here and you have to write the answers of any 4 questions. उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं क्वेश्चंस के, बाय ऑब्जर्विंग दिस पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये जो मैप है यहाँ पर स्क्रीन पे कलरफुल दिख रहा है, तुम लोगों को पेपर में आया था वो ब्लैक एंड व्हाइट में था, इवन तुम लोग के टेक्स्ट बुक में सेम मैप दिया है। तो ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। ओके, द आंसर इज पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। कंप्लीट सेंटेंस में लिखा है आंसर, ऐसे ही लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सी इज टू द वेस्ट ऑफ इंडिया, and answer is Arabian Sea is to the west of India. Again, next question is which island in the Bay of Bengal lies to the east of India? The answer is Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal lies to the east of India. Now the next question, that is the question number 4. Which is the neighboring country of Uttar Pradesh in India? तो हमें जो उत्तर प्रदेश जो है स्टेट इंडिया का, उससे जिसका बॉर्डर लग के है ऐसी कंट्री का नेम लिखना है। दैट इज द आंसर इज नेपाल इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ द उत्तर प्रदेश इन इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके नेम लिखने हैं, उनको जैसे कि 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। The answer is Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura. These are the northeastern states of India.
ऑलरेडी इट इज गिवन इन द मैप, जैसे कि हमें पॉलिटिकल मैप दिया है उसके अंदर ये सब स्टेट्स के नेम भी है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया. एज वी नो, New Delhi is the capital of India. Okay, now we'll move to the next question. Question number 5. Question number 5 is give geographical reasons and you have to solve any two, and marks will be 6 for this question. Give geographical reasons. First question is India is considered as a young country. अभी इसका हमें रीजन बताना है, इंडिया को क्यों यंग कंट्री कहा जाता है. तो देखो, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बड़ा लिखा हुआ है, सेम वे से आप लोगों को भी आंसर शीट में ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो है इसके आगे फिर से क्यों बॉक्स के अंदर क्यों 5 ऐसा नहीं लिखना है. ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया है, बॉक्स के अंदर ओनली नंबर यू हैव टू राइट. देन उसके नीचे उसका जो सब क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर का आंसर लिखना है, वो नंबर डालो. देन पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है. जो ज्योग्राफिकल रीजन भी वेग आंसर नहीं लिखना है और उसको डायरेक्टली ऐसे पैराग्राफ फॉर्मेट में या फिर शॉर्ट नोट्स की तरह ऐसा नहीं लिखना है. तो फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट इज in India the percentage of working people in bracket young people in population is greater than non-working population. कैसे हम कहते हैं कि इंडिया इज अ यंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में क्या देखने को मिलता है, तो यंग पीपल जितने भी हैं मीन्स वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, इट इज ग्रेटर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. नॉन वर्किंग मीन्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो भी चाइल्ड है या फिर ओल्ड एज पीपल है, these comes to the non-working population. Second point, in India the percentage of working people in population is nearly 51%. और हमें वो परसेंटेज भी पता है वो कितना है, नियरली 51% पीपल जो है या फिर पॉपुलेशन जो है वो कैसी है, तो वर्किंग पॉपुलेशन है. नाउ द थर्ड पॉइंट, इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, children and senior citizens is lesser than working population. Therefore, India is looked upon as a young country or as a young. तो कैसा है अपने कंट्री में, इवन मीन्स इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो हमें कैसे देखने को मिलती है, इट इज मोर एज कंपेयर टू द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन. Now we'll see the next question. Next question is India receives precipitation from the northeast monsoon winds too. Means India में जो precipitation होता है, precipitation means rainfall, तो वो कहाँ से होती है, नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड से भी होती है. हमें पता है कि साउथ वेस्टर्ली के पास से भी हमें क्या होता है, उस विंड से भी हमें क्या होता है, हमारे कंट्री में क्या होता है, रेनफॉल होता है. तो सेम वे से नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड से भी रेनफॉल होती है. तो इसके पीछे के रीजंस बताने हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. These winds enter the mainland of India from the southern regions and gradually flow towards the northern regions of India. हमें पता है, ये तुम लोग क्या कर सकते हो उसको, इवन इंडिया का जो मैप है आउटलाइन मीन्स ओनली आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ स्टेंसिल ऐसा भी दिखा सकते हो. पर गिव ज्योग्राफिकल रीजन में पूछा है इसलिए यहाँ पर जरूरत नहीं. आंसर इन डिटेल में अगर जब भी पूछते हैं तब मीन्स एक्सप्लेन में, तो उस टाइम पे तुम लोग क्या कर सकते हो, स्टेंसिल लेके इंडिया का आउटलाइन मैप ड्रॉ करके क्या दिखा सकते हो, तो जो साउथ वेस्टर्न विंड जो है, साउथ वेस्टर्लीज
इनके थ्रू कैसे रेनफॉल होती है इंडिया में ये दिखा सकते हो। जैसे कि हमें पता है अरेबियन सी के ऊपर से वो ब्रांच आती है इंडिया में, तो वो तुम लोग शो कर सकते हो। These winds enter the mainland of India from the southern regions and gradually flow towards the northern regions of India. ये हो गया first point. The second is these winds are obstructed by the Himalayan ranges in the north. As its effect, this wind starts their return journey and starts flowing backward towards the Indian Ocean. जैसे ही हमें पता है कि जब ये क्या होता है, ये जो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से जो भी विंड आए हैं मेनलैंड इंडिया के ऊपर, वो आगे नॉर्थवर्ड फ्लो करते हैं, देन वो क्या होते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं किसके थ्रू, तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस की थ्रू, मींस वो क्या है एज अ बैरियर वहां पर है नॉर्दर्न साइड में। तो जैसे कि वहां से वो क्या करते हैं, फिर उसको ऑब्स्ट्रक्ट होके फिर देन वो फिर से कम बैक होते हैं। और जब भी वो रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है, देखो इन द थर्ड पॉइंट, इन देयर रिटर्न जर्नी दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वो कैसे ब्लो करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन। एज इट्स इफेक्ट दिस विंड्स ब्रिंग retreating monsoon in India. Thus India receives precipitation from northeast monsoon winds too. और इसका ही परिणाम क्या होता है, जो तमिलनाडु और केरला है इन कोस्टल एरियाज में भी रिटर्निंग मॉनसून की वजह से भी हमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इंडिया में होता है। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। There is mixed economy in Brazil and India. हमें पता है इवन आंसर इन वन सेंटेंस, फिल अप, इसके लिए भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग लिखते हैं इंडिया एंड ब्राजील बोथ कंट्रीज हैविंग मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि कैसे मिक्स टाइप की इकोनॉमी, इवन तुम लोगों ने वहां पर इसको ये भी किया है, उसकी एक एक्टिविटीज भी थी, उसको भी सॉल्व किया है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, तो उसके ऊपर से भी तुम लोग लिख सकते हो। द आंसर 1 नंबर इज द इन मिक्स्ड इकोनॉमी द प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर को एग्जिस्ट। जैसे कि देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि क्या होता है कि जो भी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों भी को एग्जिस्ट, मींस दोनों भी उस कंट्री में होते हैं। देन सेकेंड पॉइंट, इन ब्राजील एज वेल एज इन इंडिया द सेक्टर लाइक रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन, स्टील इंडस्ट्री एक्सेट्रा आर ओन एंड मैनेज बाय पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पर तुम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि पोस्टल सर्विसेज है, इवन नेशनलाइज बैंकिंग है, मींस आरबीआई वगैरह, ये जो सेक्टर्स है ये भी चीजें हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ये सब भी क्या है, ये सब कहाँ पर है, तो पब्लिक सेक्टर के अंडर आता है। अगेन द थर्ड पॉइंट इज इन ब्राजील एज वेल एज in India, the sector like banking, airways, health, education, telecommunication, etc. are owned and managed by private as well as public government sector. In this way, there is mixed economy in Brazil and India. तो यहाँ पर जो है जो भी ऐसे सेक्टर्स है जो कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं, ऐसी एक्टिविटीज भी यहाँ पर यू हैव टू मेंशन। तो ऐसी वाली जो सर्विसेज है वो है कौन सी, बैंकिंग है, एयरवेज है, हेल्थ है, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, तो ये सब। ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन इज Brazil's time is behind of India's time. ब्राजील का जो टाइम है वो क्या है, इंडिया के टाइम से पीछे है, बिहाइंड।
First point is India is 8 hours 30 minutes behind of BRT. Again, Brazilian real time. Brazil itself has 4 time zones, while India considered 82.5 degree east longitudes as the Indian Standard Time. The second point, IST means Indian Standard Time, is 5 hours 30 minutes behind of Greenwich Meridian Time, while Brazilian time is 3 hours behind of GMT, Greenwich Meridian. Okay, now the next question, that is question number 6A. Draw simple point graph based on the following table and answer the question. कभी कभी क्या होता है कि हमें उन्होंने डायरेक्टली लिखा नहीं रहता है कि लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, मीन्स ड्रॉ अ लाइन ग्राफ और ड्रॉ अ सिंपल लाइन ग्राफ, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया रहता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्रॉ सिंपल ग्राफ और ब्रैकेट में दिया है पॉइंट। ओनली ड्रॉ सिंपल ग्राफ ऐसा भी आता है तो it means you have to draw only simple line graph based on the following table and answer the questions. अभी फर्स्ट में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6A जो है इसमें हमें पता है 3 मार्क्स के लिए क्या है, तो ग्राफ प्लॉट करना है एंड 3 मार्क्स के लिए उसके ऊपर जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उसको हमें सॉल्व करना है। जब ये दोनों एक्टिविटीज हो जाती है तब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6A के जो है ना 6 मार्क्स ये मिल जाते हैं। अगर सिर्फ ग्राफ प्लॉट करोगे और ऐसा सोचोगे कि नहीं आई विल गेट ऑल 6 मार्क्स, तो ऐसा हो नहीं सकता है। ग्राफ के साथ उसके साथ क्या होने चाहिए, उसके 3 क्वेश्चंस के भी आंसर्स राइट होने चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6A की एक्टिविटी। और कोई कोई ये भी समझता है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 6A जो है उसमें इतना प्लॉटिंग वगैरह है तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6B ही करता हूँ। पर ये जो क्वेश्चन नंबर 6A है ये इतना हार्ड नहीं होता है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6B जो है उसमें क्या होते हैं 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और 6 के 6 क्या होते हैं कंपलसरी होते हैं। तो बेटर वे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चाहे तो एक काम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6B को सॉल्व करो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 6A सॉल्व कर सकते हो अगर जिस किसी को प्लॉटिंग में टाइम लगता है। पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें A एंड B दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, एक को भी छोड़ो मत, क्योंकि उतना भी वो टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये दोनों भी क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले इसमें ये कंसिडर करना है कि अगर प्लॉटिंग हम भले ही अच्छे से कर लेते हैं बट अगर हमने स्केल प्रॉपरली नहीं लिखा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं शो किए हैं, तब हमें हमारा जो है ग्राफ के ऊपर का 1 मार्क्स कम होता है। एक तो होते हैं 3 मार्क्स के लिए, ग्राफ जो होता है वो 3 मार्क्स के लिए होता है, उसमें से 1 मार्क जो होता है वो किस लिए होता है, y एंड x एक्सिस एंड स्केल, इसके लिए 1 मार्क होता है। और जो 2 मार्क्स होते हैं रिमेनिंग 2 मार्क्स वो किस लिए होते हैं, तो ये जो तुम लोग प्लॉटिंग करते हो उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो प्रॉपरली उसका डिस्टेंस लेना है, मेजरमेंट लेनी है, देन उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, सिंपल लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर बार ग्राफ आता है तो बार ग्राफ करना है। अभी यहाँ जो है सिंपल लाइन ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। पॉइंट ग्राफ मीन्स क्या, लाइन ग्राफ। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है, टेबल में दिया है ना 1961, देन उसके बाद 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011। तो इसमें अगर तुम लोग देखोगे तो क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अगर उनमें डिफरेंस देखोगे तो 1961 में 18.0, 1971 में 18.2। यू विल थिंक हाउ कैन आई शो 0.2। तो यहाँ पर ऐसा तुम लोगों के दिमाग में आ सकता है कि अरे मैं ये 0.18 के बाद 0.2 कैसे शो करूँ, 23 के बाद 0.3 कैसे शो करूँ। तो उसके लिए
तुम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है। जब भी पॉइंट के बाद वाली जो फिगर है वो अगर फ्रॉम 1 to 5 रहेगी तो हमें उसको जीरो एज अ जीरो कंसिडर करना है। जब भी वो क्या रहती है, पॉइंट के बाद वाली जो फिगर दी है वो अगर मोर देन 5 होती है, मीन्स 6 to 9 तक होती है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, जो पॉइंट के पहले वाली जो फिगर होती है उसमें क्या करते हैं, तो 1 ऐड कर लेते हैं। तो सेम वे से ऐसे ही कंसिडर करना है। तो पहला फर्स्ट अगर देखेंगे 1961, तो वो कितना आएगा, डायरेक्टली 18। अभी 18 लेते हैं, कैसे लेते हैं देखो, स्केल में क्या दिया है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% अर्बन पॉपुलेशन। Why urban population? Because it is already written here. The trend of urbanization in India 1961 to 2011, and in the table it is given percentage of urban population, means percentage of urban population। तो इसीलिए हमें ये percentage of urban population है, यही हमें on y axis लेने हैं। तो ये percentage हमें पता है, percentage 100 के ऊपर नहीं जाते हैं, मीन्स 100% इज द लास्ट परसेंटेज। तो ये जो, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको 10, 20, 30, 40 इस डिस्टेंस से 100% तक ही दिखाएंगे, उसके ऊपर दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया है। हाँ, जब भी परसेंटेज में डेटा नहीं रहता है, उसको अगर मिलियंस में दिया रहता है, थाउजेंड्स में दिया रहता है, टन्स में दिया रहता है, तो उस टाइम पे वो जो डेटा है उसको वाई एक्सिस पे शो करते टाइम पे तुम लोग उससे भी ज्यादा यहाँ पर दिखा सकते हो वाई एक्सिस के ऊपर वो फिगर। पर यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, 100 तक फिनिश करो, 100 के नीचे मत करो, 100 तक करना है। क्यों करना है, क्योंकि वो 100 में से ही परसेंटेज यहाँ पर निकाले हैं, तो इसीलिए। और ये जो है ना टैग लाइन स्केल का, उसको बाय हार्ट करके रखो, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसके बाद का जो है ना ये फिगर खाली तुम लोगों का चेंज होगा। एंड जो भी पॉइंट ग्राफ होता है उसमें वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ये दोनों भी हमें स्केल में लिखने होते हैं। जब भी बार ग्राफ होता है उस टाइम पे एक्स एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है, मीन्स वो लिखा तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मार्क कम नहीं होता है, क्योंकि बार ग्राफ के टाइम पे जो एक्स एक्सिस है उसका जो मेजरमेंट है वो चेंज होता है। तो जैसे कि यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये यहाँ पर लिखा है 1 सेंटीमीटर, तो सेम वे से वाई एक्सिस हमेशा 1 सेंटीमीटर पे ही हम लोग दिखाएंगे, उसको कभी चेंज नहीं करेंगे। और डिजिट जब भी लेंगे तो राउंड फिगर में ही लेना है, जैसे कि यहाँ पर 10, 20, 30, उसको बहुत ज्यादा स्पेस है आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर अवेलेबल, इसीलिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%, ऐसा नहीं लेना है। कोई कोई ऐसे करते हैं तो उसमें मेजरमेंट में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, जो मिलीमीटर में जो डेटा शो करना है ना उसको हम नहीं दिखा सकते, तो इसके लिए। तो इसमें देखो फर्स्ट जो दिया है वो क्या है, 18 शो किया है, वो डायरेक्टली 18 दिया है, तो 10 के ऊपर 8 लाइंस लिए हैं मिलीमीटर के। बट सेकेंड 1971 में जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का, दैट इज 18.2%। बट हमने देखा है क्या कि जब भी पॉइंट के बाद का जो फिगर है, नंबर है, वो अगर 1 to 5 के बीच में रहेगा तो हम उसको एज अ जीरो कंसिडर करेंगे। तो सेम वे इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो हम उसको कितना कंसिडर करेंगे, यहाँ पर मैप पे कैसे शो करेंगे, 18 ही। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आया सेम उससे ही पैरेलल ये जो सेकेंड पॉइंट है 1971 का वो आएगा। पहले उस पॉइंट को डॉट करो, कितना 20 के नीचे एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन, मीन्स क्या, यहाँ पर तुम लोगों का 18% आ जाएगा और उसको अच्छे से पॉइंट लगाना है। ऐसे ही करके आगे के जो है वो सब पॉइंट्स यहाँ पर देने हैं, सबका डिस्टेंस चेक कर लो। जैसे कि अगर यहाँ पर 0 है, जहाँ पर क्या होता है y एंड x दोनों क्रॉस हो जाते हैं, वहां पर 0 है, वहां से मिलीमीटर भी देख लो। अगर मैंने फर्स्ट पॉइंट में मीन्स उस y एक्सिस से अगर 1961 तक 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है, तो मुझे वही डिस्टेंस यहाँ पर मेंटेन करना है आगे के हर एक ईयर के बारे में, हर एक डिकेड के बारे में। जैसे 1961 तक
वाई एक्सिस से लेके 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, सेम वे से 1971 तक भी 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है और वही हर एक पॉइंट के बीच में मेंटेन किया है। और जब भी पॉइंट जोड़ोगे, ज्वाइन करोगे, तो जो बीच के पॉइंट्स है जहां पर हमने एक्चुअल पॉइंट्स लगाए हैं, वही पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं। उसके बाजू का जो सर्कल किया है ना, उसके अराउंड उस सर्कल को नहीं ज्वाइन करना है, जोड़ना क्या है, तो पॉइंट्स। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, तुम लोगों का ये ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल लाइन ग्राफ, पॉइंट ग्राफ और सिंपल ग्राफ। और इसके लिए देखो वाई एक्सिस के बाजू में ये जो परसेंटेज दिया है डेटा, उसको मेंशन किया है यहाँ पर, पॉपुलेशन इन परसेंट, ये भी मेंशन करनी है। देन पॉइंट का जो ग्राफ का जो टाइटल है, दैट इज ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ये भी ग्राफ का टाइटल हमें देना है। जब भी ऐसा ग्राफ रहेगा और साथ में देखो ऊपर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6A दिया है, तो ऐसा ही जब भी रहेगा तो उस टाइम पे 3 मार्क्स उसके आराम से मिल जाएंगे। Okay, now we'll move to the next question, means that is the sub questions which have been asked on the table or that graph which we have plot। तो जो भी हमने प्लॉट किया है उस ग्राफ के बेसिस पे है। यहाँ पर देखो मैंने फिर से यहाँ पर टेबल दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ द डेटा? द इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 years, दिस इज द आंसर। और ये क्या है, इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 years। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर जो ईयर्स दिए हैं 1961 टू 1971, दोनों के बीच का गैप 10 years का है। ऐसे ही हर जगह पे हमें क्या देखने को मिलता है, डेटा का जो इंटरवल है दैट इज फॉर 10 years, 10 years का है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द इंटरवल ऑफ द डेटा इज 10 years। अगर यहाँ पर 20 years का अगर इंटरवल रहेगा तो हम वैसा ही उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बट मोस्टली जो है 99% 10 years का ही डेटा दिया रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पीरियड डिड अर्बनाइजेशन ऑक्योर रैपिडली? तो उसका आंसर है द अर्बनाइजेशन वाज ऑक्योर्ड रैपिडली इन द पीरियड 1971 टू 1981। तो ये कैसे पता चला? 1971 टू 1981 इस पीरियड में क्या हुआ है, और जो भी अर्बनाइजेशन थी वो रैपिडली क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो ये कैसे पता चला? तो देखो 1971 से लेके 1981, यहाँ दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मींस अगर हमने 23.3, ये जो 1981 का जो परसेंटेज है अर्बन पॉपुलेशन का, उसमें से अगर प्रीवियस डिकेड जो है 1971, उसका जो डेटा दिया है, मीन्स इसका जो फिगर दिया है कितना परसेंटेज है, 18.2%, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये क्या है, हमें पता चलता है। ऐसे ही सेम वे से हर किसी का हर डिकेड का माइनस करके देखेंगे तो हमें मोस्टली जो है यहाँ पर ही कितना देखने को मिलता है डिफरेंस, दैट इज द 5.1। मीन्स क्या, मीन्स ये कि सबसे ज्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज कहाँ पर हुई है, तो 1971 टू 1981 इस डिकेड में हुई है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन लोवेस्ट? तो उसका आंसर है in the decade 1961 to 1971 the growth of urbanization was lowest. Now this is the pie diagram, pie chart. This is given for the question number 6B, and these are the questions from 1 to 6. These are the asked on the basis of this pie chart. First question, after observing both the pie charts, which information we get? Answer is, after observing both the pie charts, we get the information of contribution of sectors in GDP and percentage of population engaged in various sectors. Now the second question, which country has a higher percentage of population engaged in primary activities? India has the highest percentage of population engaged in primary activities. Now the third question, how much percentage of the population in India is engaged in the primary sectors?
The population in India is engaged in the primary sector is 48.8%. It is already mentioned in the pie chart. Okay. Now the fourth question, how much percentage of the population in Brazil is engaged in the tertiary sectors? The answer is the population in Brazil is engaged in the tertiary sector is 26.9%. Now the next question, that is fifth. How much percentage of the population in India is engaged in the secondary sector? The answer is the population in India is engaged in the secondary sector is 24.3. Now the next question. In which country is the contribution of tertiary sector greater in the GDP? The answer is in Brazil country, the contribution of tertiary sector is greater in the GDP. Now the next. Just a minute. एक मिनट. Okay. This is the question number 7.1. What problems did Brazil and India face after independence? तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद ब्राजील ने एंड इंडिया ने क्या किए हैं, फेस किए हैं, उनको हमें यहाँ पर लिखना है. Brazil and India face the following problems after independence. First is after independence, Brazil faced many financial crises. The second is within 20 years after independence, India has fought 3 wars. तो इंडिया में भी 3 wars हुए थे. And the third point is after independence, Indian people from various parts of India coped up with severe famine situations. And the fourth point is after independence, India faced many financial difficulties and a problem of slow rate of economic growth. These are the problems which the country Brazil and India have faced after independence. Okay, the next question is, what measures are being taken to control the pollution of rivers in India? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको तुम लोग ओन वर्ड से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच यू आर अवेयर. तो उसमें अगर तुम लोगों का अवेयरनेस चेक करने के लिए ये क्वेश्चन है, क्या क्या मेजर्स तुम लोग यहाँ पर ले सकते हो इसके बारे में. तो देखो, द फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल द pollution in the rivers of India. First is controlling the discharge of human sewage into rivers. तो जो भी डिस्चार्ज हो रहा है ह्यूमन सीवेज का, मीन्स क्या, जो भी ड्रेनेज वगैरह है उसको उसके डिस्चार्ज को हमने कंट्रोल करना चाहिए. नदी के अंदर, रिवर के अंदर डायरेक्टली उस जो पोल्यूटेड वाटर है, गंदा पानी है, उसको जाने से रोकना है. उसको पहले ही क्या करना चाहिए, तो प्यूरिफाई करना चाहिए उसको सम परसेंट. तो भी एटलीस्ट उसका जो पोल्यूशन है, डर्ट जो है, उसको हमने उसकी इंटेंसिटी कम करनी चाहिए. देन वी कैन लीव दैट वाटर इनटू द रिवर्स. तो इसीलिए यहाँ पर है कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज इनटू रिवर्स. तो ऐसे अपने ओन से भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट. द सेकेंड इज applying sufficient and appropriate pre-treatment to the industrial effluent or waste before discharge to the sewers. तो जो भी सीवर्स हैं या फिर पाइपलाइन के थ्रू जो भी इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेड वाटर जाता है
जो कि यहाँ रिवर्स में ड्रेन आउट होता है, तो उसको भी हमने क्या करना चाहिए, पहले उसके ऊपर प्री ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए कुछ तो भी एफ्लुएंट मैनेजमेंट वगैरह होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है। देन थर्ड, displaying hoardings informing tourists not to pollute water of rivers and highlighting the importance of cleanliness, removing solid waste from rivers and applying other river cleaning processes, जैसे कि गंगा बचाओ या फिर क्लीन द गंगा, ऐसे जो भी स्वच्छ भारत मुहिम जैसे है, सेम वैसे हम क्या कर सकते हैं, स्वच्छ रिवर्स मुहिम भी चला सकते हैं, पीपल में अवेयरनेस जगा सकते हैं। तो ये सब चीजें, इवन इसके साथ तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी कुछ फाइन्स वगैरह लगाने चाहिए, या फिर और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो ये सब भी यहाँ पर पॉइंट्स तुम लोग इंक्लूड कर सकते हो। Okay, next question. Describe the information about drought quadrilateral in Brazil. अभी ये जो ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल है ब्राजील का, तो इसके बारे में तुम लोग को इंफॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट पॉइंट इज द ग्रेट एस्कार्पमेंट एंड द ब्राजीलियन हाईलैंड्स obstruct the trade winds flowing in southeast and northeast from the Atlantic Ocean. Second is due to this obstruction, it rains heavily in the windward side of the Great Escarpment and the Brazilian highlands in the eastern coastal regions of Brazil. The third point is the amount of annual average rainfall in the eastern coastal region of Brazil is nearly 1,200 millimeters. The fourth point is the winds that reach the top of the Great Escarpment and the Brazilian highlands become dry. The capacity of holding moisture of these winds increases. The fifth point is, as its effect, it rains less to the leeward side of the Great Escarpment and the Brazilian highlands. Thus, the northeast part of Brazil receives the minimum rainfall. Seventh is the amount of annual average rainfall is only nearly 600 millimeter in this region. This region is a rain shadow region. Means you have to mention the drought quadrilateral region is a rain shadow region. Then 8. It is known as drought quadrilateral. The higher temperature is found in this region. तो देखो, जो भी मैंने, अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तो जो भी मेन पॉइंट्स है उसको मैंने हाईलाइट किया है। हाईलाइट कैसे किया है, इवन ओनली सिंपली वन लाइन खींच दी है, इसके अंदर जो भी मेन जो वर्ड्स है उनको अंडरलाइन किया हुआ है। तो सेम वैसे जब भी तुम लोग आंसर लिखोगे, आंसर इन डिटेल का, इवन जियोग्राफिकल रीजन का भी, तो उसमें जो मेन वर्ड्स है, मेन टॉपिक्स है, जो कि तुम लोगों को उसके ऊपर स्ट्रेस देना है, तो उसको अंडरलाइन करो। That will help to increase your marks. Now the last question. Explain the nature of agribusiness in India. ये जो क्वेश्चन दिया है उसको थोड़ा अच्छे से देखो। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एग्री बिजनेस इन इंडिया। एक्चुअली एग्री बिजनेस के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को एग्रो इंडस्ट्रीज या फिर एग्री इंडस्ट्रीज के बारे में दिया हुआ है अपने टेक्स्ट बुक में, एग्री बिजनेसेस के बारे में नहीं दिया है। एक्चुअली ये क्या होना चाहिए, एग्री बिजनेसेस, अगर तुम लोगों को एग्री इंडस्ट्रीज पता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में पता है, इवन अदर सर्विस सेक्टर्स के बारे में भी पता है, तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो तुम लोग, ये जो एग्री बिजनेसेस अभी नाउ कंसेप्ट इमर्ज हुई है, ये इसके बारे में तुम लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो। पर मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है
इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले जो अदर 3 क्वेश्चंस दिए हैं उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है, और इसके बारे में जब भी लिखना है तो उस टाइम पे हमें बाकी के अगर जनरल नॉलेज या फिर अदर थिंग्स अगर अच्छे से पता होगी तो आंसर अपना कैसा रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। नहीं तो फिर उसको डायरेक्टली कुछ भी उसको वेग आंसर देके फायदा नहीं। देखो अभी इसके पॉइंट्स दिए हैं, एग्री बिजनेसेस के बारे में दिया है। पहले तो उसकी जो कंसेप्ट है उसको यहाँ पर मेंशन किया है। फर्स्ट, एग्री बिजनेस रेफर्स टू द, हाँ इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, उसको अच्छे से 2-3 टाइम्स पढ़ लो। इसलिए है ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में एग्री बिजनेस से रिलेटेड कुछ आता है तो तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो। एटलीस्ट तुम लोगों को थोड़ा तो पता रहेगा कि हाँ व्हाट इज द एग्री बिजनेस। First point is agribusiness refers to agriculture related activities that put farmers, processors, distributors and consumers within a system that produces, processes, transports, markets and distributes agricultural products. तो एग्रीकल्चर एग्रो बिजनेसेस ऐसे बिजनेसेस हैं कि जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी प्रोसेसर्स हैं, मीन्स क्या इंडस्ट्रीज में जो उनको प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूसर्स मीन्स क्या, जो भी रॉ मटेरियल पहले प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स फार्मर्स। अगेन प्रोड्यूसर्स मीन्स जो भी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, दैट इज। देन ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या करते हैं, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है या फिर रॉ मटेरियल है जिसको फार्मलैंड से या फिर जो फार्मलैंड है या फिर जो भी एग्रीकल्चर है, मीन्स वो रॉ मटेरियल को कैरी करते हैं कहाँ से, तो रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक की कैरी करना। देन उसके बाद जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस होके जो फिनिश प्रोडक्ट बनता है उसको फिर मार्केट में कैरी करना। उन ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले हैं, मीन्स क्या, ट्रांसपोर्ट। अगेन मार्केट्स, जो भी मार्केट्स है जैसे कि एपीएमसी मार्केट्स है, हम लोगों को पता है वाशी में है ना, तो ऐसे ही जो भी एपीएमसी मार्केट्स है या फिर दूसरे भी मार्केट्स है, तो इनके अंदर भी क्या होता है, इसके ऊपर एक्टिविटीज चलती हैं। मीन्स क्या, वो लोग भी वहां पर ट्रेड करते हैं। ये जो फिनिश प्रोडक्ट है या फिर रॉ मटेरियल है उसका भी ट्रेड होता है। देन क्या है, उसके बाद उस चेन में कौन आता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, तो ये सब उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो उसको जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक के लेके जाने का काम होता है। तो ऐसे ये जो पूरा एक चेन है दैट इज कॉल्ड एज एग्री बिजनेस। द नेक्स्ट इज इंडिया इज अ लार्ज कंट्री विथ एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ लैंड दैट कंबाइंड विथ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस आर कंड्यूसिव टू एग्रीकल्चर एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो यहाँ पर इंडिया कैसे फेवरेबल है, उसका क्लाइमेट कैसे फेवरेबल है, ये सब मेंशन करना है। इवन वी नो, तो क्या है कि जो भी खेती बाड़ी में काम करने वाले या फिर एग्रीकल्चर का काम करने वाले बहुत सारे मेजर पॉपुलेशन अपने इंडिया में देखने को मिलती है। मीन्स मेजोरिटी पॉपुलेशन इज डूइंग द प्राइमरी, इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर एंड विच इज doing the agriculture as their basic job. The third point is agriculture plays an important role in India and is the backbone of the economy. इंडिया में एग्रीकल्चर क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो अपनी कंट्री का क्या है, बैकबोन है। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, मीन्स क्या कि इंडिया में पहले से ही एग्रीकल्चर के ऊपर ही अपना कंट्री क्या हो रहा है, अभी अच्छे से चल रहा है, इवन प्रोग्रेस कर रहा है, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर का रहा है, और वही अभी हमें क्या कर रहा है और डेवलपमेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो रहा है। Almost 50% of the total labor force is engaged in agriculture and it contributes approximately 16% of India GDP. तो इंडिया के जीडीपी में भी 16% क्या है, तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। और कितना, ऑलमोस्ट 50% इतना लेबर फोर्स जो है वो कहाँ पर एंगेज है, तो एग्रीकल्चर में है। इवन जो तुम लोगों ने पाई चार्ट को ऑब्जर्व किए ना, उसमें भी दिया है। Again, next point is Indian agriculture has transformed from traditional production to the agribusiness industry. अभी इंडियन एग्रीकल्चर क्या हो रहा है, अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
ट्रेडिशनल प्रोडक्शन से अभी एग्री बिजनेस की तरफ वो टर्न कर रहा है। मीन्स पहले क्या था, उनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस चलते थे, पर अभी जो है ना वो अब इवन अचार से लेके, अचार पापड़ से लेके सब चीजें क्या होती है, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें हैं वो सब क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, उनका ट्रेड हो रहा है। और ट्रेड होने के कारण इंडिया को क्या हो रही है, बाहर की करेंसी मिल रही है। मीन्स क्या हो रहा है, अपना जो ट्रेड है वो कैसे चल रहा है अभी, वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है अभी, ये बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल टू द एग्री बिजनेस की तरफ टर्न होने से। फ्रॉम प्योर प्रोडक्शन टू अ ब्रॉडर कंसेप्ट इंक्लूडिंग इनपुट सप्लाई, farm machinery production, food processing, marketing and distribution of farm products and other services. तो इसमें क्या क्या चीजें अगेन और होती है, तो नॉट ओनली प्योर प्रोडक्शन बट उसके साथ साथ ये कंसेप्ट जो है ना वो ब्रॉडर बन गई है। उसमें सप्लाई होता है अगेन फार्म मशीनरी प्रोडक्शन, हम लोगों ने पेस्टिसाइड्स वगैरह, इवन मशीनरीज, ट्रैक्टर्स एंड अदर चीजें भी होती हैं, वो उनका भी प्रोडक्शन होता है। ऑल दिस कम्स अंडर द एग्री बिजनेस। अगेन उसके साथ साथ फूड प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें इस एग्री बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। देन फिफ्थ पॉइंट, द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग, thus क्रिएटिंग होप फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री। तो ये जो एग्री बिजनेस की कंसेप्ट है ये और भी क्या हो रही है, तो और भी इंक्रीज हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो कंट्री भी अच्छे से डेवलप हो रही है। This type of question is expected in your board exam. Now we'll stop here. We have discussed our paper also. Shall I stop, sir? Rupaja, unmute yourself and ask your doubt. Ritesh, unmute yourself. Rupa, unmute yourself better. हेलो मिस। हाँ yes. मिस एक बार रिवाइज करके दिखाओ ना। अच्छा okay, okay, no problem. From starting, Rupa. Rupa, don't worry, you will get that PPT afterwards. हाँ yes. Afterwards, the PPT will be available in your हाँ group. yes Rupa, I will provide that. Don't worry. हाँ Kajal, unmute yourself. Teacher, show the filling the blanks once more. Okay. Are you will get now. You will get this. If you have any PPT. doubt, you can ask. The PPT will be available for you afterwards.